قوت پرواز جب ان آندھیوں نے چھین لی، کاروانے شوق کی بے فیض ہجرت مسترد. کیا کہ کاروانے شوق کی بے فیض ہجرت مسترد. اور یہ مقطع ہے. جی نور یہ آغاز ہے دور عمل انگیز کا، نور یہ آغاز ہے دور عمل انگیز کا، اب نظام کہنہ کی بوسیدہ تہمت مسترد. واہ اب نظام کہنہ کی بوسیدہ تہمت مسترد. کیا کہ شکریہ. بہت خوبصورت کلام. اچھا ظاہر ہے آپ سے تو کئی حوالوں سے بات ہوگی. ایک تو حوالہ آپ کا کینیڈا کا، وہاں کی ادبی فضا کا، جی. اور دوسرا حوالہ کراچی میں جو آپ کی ایک تخلیقی سرگرمیاں رہیں اور تخلیقی شخصیت بنی، اس کا پس منظر بھی ایک حوالہ رہے گا. لیکن پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کینیڈا کی جو ادبی صورتحال ہے، جو فضا ہے، اس میں کیا نیا، کیا ایسا جدا نظر آیا جو آپ کو سب سے اچھا لگا؟ ادبی فضا میں یہ ہے کہ لوگ بڑے شوق سے مشاعروں میں وہاں شرکت کرتے ہیں، اور پاکستان سے، ہندوستان سے شعراء کو بڑے شوق سے بلایا جاتا ہے، اور وہ مشاعرے باقاعدہ اسپانسرڈ ہوتے ہیں. صحیح. اور بڑے ہی تو اس کو احتشام کے ساتھ منائے جاتے ہیں. لوگ آتے ہیں اور باقاعدہ ٹکٹ خرید کر آتے ہیں. یہ ایک نئی اور انوکھی بات ہمیں لگی. اور ادبی فضا جو ہے وہ بہت ہی فعال ہے وہاں کی. جو یہاں کے شعراء حضرات بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور جو وہاں جا کر بس گئے ہیں بہت سارے، جیسے ابھی ذکیہ غزل صاحبہ تشریف لے گئی ہیں، رسول احمد کلیمی ہیں وہاں پہلے سے، اور بھی بہت سے دوسرے شعراء ہیں جن سے ملاقات ہوتی رہی میری. تو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ جیسے پاکستان کی ادبی فضا سے کچھ الگ یا کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے، بلکہ میرے خیال میں تو ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوتا ہے وہاں پہ. سارے لوگ مختلف ممالک سے تشریف لاتے ہیں، اور بڑی اچھی ادبی محفلیں سجتی ہیں، اور گورنمنٹ بھی ان کو گرانٹ دیتی ہے. یعنی ہر اچھا، قسم آپ کی کے ادبی. اس جواب سے کئی سارے سوال ذہن میں آ گئے ہمارے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک تو ہو گئے چھوٹے بڑے مشاعرے، ایک ہو گئے جشن جو مختلف شعراء کے ساتھ یہاں سے بلا عالمی کے مشاعرے منائے بھی جاتے ہوتے ہیں. ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی سنجیدہ ادبی سرگرمیاں ہیں، مثلا سیمینار، تنقیدی نشستیں، اس طرح کی بھی، مطالعاتی جی نشستیں؟ بالکل اس طرح کی بھی نشستیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا. کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، لوگ تشریف لاتے ہیں. اور ایک مشاعرہ جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گی، وہ خواتین کے حوالے سے ہوا تھا، جس میں ساری خواتین نے بالکل ایک ادبی ماحول میں، اور ان کے لباس بھی اسی طرح کے جیسے پرانے زمانے میں خواتین کے ہوتے تھے، اور خاص دان اور اگربتیاں اور موم بتیاں اور بیلے کے گجرے، اور وہ ایک انوکھا مشاعرہ تھا جس میں یہ واقعی بڑا انوکھا لگ رہا ہے. یہ نسیم سید صاحبہ نے وہاں پہ ترتیب دیا تھا، جس میں واہ. بہت مزہ آیا تھا. تو نہیں، اشفاق حسین صاحب ہیں، نسیم سید اشفاق صاحب حسین آئیں گے، لوگ تو جی بہت سینئر اور بہت عرصے جی سے ادب کی بالکل. ترویج میں وہاں جی لگے ہوئے ہیں. تسلیم ادب الہی کی زلفی ترویج ہیں. سے ایک سوال ذہن میں آ گیا، لیکن ہم کچھ کلام سن لیتے ہیں آپ کا نا، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کلام ہی رہ جاتا ہے. اچھا تو شکریہ. وہ کلام سنیں گے، اور پھر ہم آپ سے اس پہ ضرور گفتگو کریں گے. ایک شکایت جو یہاں کے لوگوں کو امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والوں سے ہے، اب وہ شکایت آپ سے کی جائے گی کیونکہ اب آپ نمائندہ ہیں. ہاں لیکن جی ارشاد. ضرور سنوں گی وہ شکایت، اور کوشش کروں گی کہ آپ کو مطمئن کر سکوں. بالکل. جی ایک غزل پیش کر رہی ہوں. ہم آج وقت کی سچائیوں کی زد میں ہیں. واہ. ہم آج وقت کی سچائیوں کی زد میں ہیں، نصیب دشمناں رسوائیوں کی زد میں ہیں. کیا کہنا ہے. ہم آج وقت کی سچائیوں کی زد میں ہیں، نصیب دشمناں رسوائیوں کی زد میں ہیں. واہ. ہمیں خبر نہیں اس دام صد فریب میں ہم، ہمیں خبر نہیں اس دام صد فریب میں ہم، شکار ہیں ستم آرائیوں کی زد میں ہیں. واہ واہ. شکار ہیں ستم آرائیوں کی زد میں ہیں، جو اپنے آپ سے خود کشمکش میں الجھی ہیں. جو اپنے آپ سے خود کشمکش میں الجھی ہیں، ہم آج ایسی ہی تنہائیوں کی زد میں ہیں. واہ واہ. جو اپنے آپ سے خود کشمکش میں الجھی ہیں، واہ. ہم آج ایسی ہی تنہائیوں کی زد میں ہیں. ہمارے ساتھ چلے ہیں ملال کے موسم، ہمارے ساتھ چلے ہیں ملال کے موسم، بدن دریدہ شناسائیوں کی زد میں ہیں. واہ. بدن دریدہ شناسائیوں کی زد میں ہیں. ہر ایک قدم پہ جہاں خود خراج لینا تھا، ہر ایک قدم پہ جہاں خود خراج لینا تھا، طلسم غیر کی رعنائیوں کی زد میں ہیں. واہ.
तिलिस्म गैर की रानाइयों की जद में है, ज़माने लग गए हमको यही समझने में, ज़माने लग गए हमको यही समझने में, पुकारती हुई गहराइयों की जद में है, वाह, पुकारती हुई गहराइयों की जद में है। कड़ी थी धूप तो तेवर संभालते उसके, कड़ी थी धूप तो तेवर संभालते उसके, अजीब लोग हैं परछाइयों की जद में है, वाह, अजीब लोग हैं परछाइयों की जद में है। हमारी पुश्त पनाही को कौन आएगा, हमारी पुश्त पनाही को कौन आएगा, शिकस्त रीख की यकजाइयों की जद में है, वाह, वाह, शिकस्त रीख की यकजाइयों की जद में है। ये क्या कि नूर खुद ही दुश्मनों के दोस्त बने, ये क्या कि नूर खुद ही दुश्मनों के दोस्त बने, गिला किया कि सफाराइयों की जद में है, वाह। गिला किया कि सफाराइयों की जद में है, हम आज वक्त की सच्चाइयों की जद में है। This time check was brought to you by उनका कहना ये है कि आखिर वहाँ इतनी अदबी सियासतें क्यों हैं, और ये जो चंद लोग हैं जो अदब की तरवीज का काम कर रहे हैं, ये टुकड़ों में क्यों बटे हुए हैं। अगर ये लोग मिलजुल के काम करें, ये काविशें जो अलग अलग हो रही हैं, अगर ये मिल के हों तो क्या नताइज और बेहतर सामने नहीं आएंगे। अच्छा, वैसे मैंने ऐसी कोई अदबी सियासत अपने एक क़याम के दौरान महसूस नहीं की। ये सियासी जवाब है, ये बयान सियासी है इसलिए कि जो सियासतें पाकिस्तान तक पहुंच रही हों, वो कैसे हो सकता है कि कनाडा रहने वालों को नहीं पता चल रही हों। हाँ, नहीं वाकई वैसे मैंने तो महसूस नहीं किया। मुख्तलिफ तंजीमें हैं, अदबी तंजीमें, तो हमें तो मतलब हर जगह से बड़ी कुशादत दिली से मदऊ की। 12:01 दो के बजाय एक धुलाई में एरियल बेहतर दाग निकाले। हमें नहीं पता क्योंकि अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ से जाने वाले खुद सियासत का हिस्सा बन जाते हो, क्योंकि अब जैसे हमारे शहर में भी कई लोग हैं वो अदबी सियासत से दूर रहते हैं, तो वो हर ग्रुप में, और हाँ, जिनको तो, शौक है तो वो जाहिर है कि फिर वो सियासत हाँ, में तो अब भरपूर देखिए हिस्सा ये तो इंसान की फितरत की तनव्वुर पसंदी है ना, सही कि कुछ लोग सादा मिजाज होते हैं, वो हर ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सियासी दाव पेच इख्तियार करते हैं, तो अब उनके साथ, तो मेरे ख्याल में तो ऐसा इतना ऑब्वियस तो नहीं था ये हमारे लिए। हमने नहीं महसूस किया। चलिए मान लेते हैं मान लीजिए। कलाम सुनते हैं मजीद जी। आपसे। नज़्म सुनाऊंगी आपको एक। इरशाद। ये नज़्म शायरों के लिए, माशाल्लाह। मतलब शायरों की शख्सियत को तसव्वुर में रख के। यानी सिर्फ शायर या इसमें शायरात भी शामिल हैं? शायर और शायरात एक दूसरे से अलग नहीं। अच्छा, इससे पहले आपको एक नहीं, लतीफा हमारे यहाँ सुनाना एक पसंद शायर आई करूंगी। थी, उन्होंने शायरों पे शेर सुनाया था और उसमें शायरात कहीं नहीं थी। अच्छा जी। तो मैं आपको एक लतीफा सुनाना पसंद करूंगी कि एक दूर दराज सैयारे पर बड़ी मुश्किलों के बाद चंद साइंटिस्ट पहुंचे। तो वो समझ रहे थे कि उनके कदम पहली मर्तबा उस जगह पड़े, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां देखा 2 आदमी पहले से मौजूद हैं और एक दूसरे को अशार सुना रहे हैं। क्या कहना। तो शायर की कुव्वते तखय्युल जो है वो उसको उन जजीरों पर ले जाती है, उन सैयारों पर ले जाती है जहाँ पे दूसरों के कदम नहीं पहुंच पाए। अच्छा, अभी। यानी ये भी कमाल है, देखिए कि 2 शायर एक दूसरे को कलाम सुना रहे थे। नहीं तो होता ये है कि एक आदमी भागा चला जा रहा था और दूसरा उसके पीछे भाग रहा था, तो सबने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? उसने कहा अरे 10 गजलें सुना के जब मेरी बारी आई तो भाग खड़ा हुआ। तो 2 शायरों का एक दूसरे को कलाम सुनाना बड़ा हैरत और वो भी दूर दराज सैयारे में। बिल्कुल। अब देखें ना, हमें कितनी कड़ी सजा दी हुई है कि हम यहाँ बैठ के सिर्फ कलाम सुनते रहते। जी। इस नज्म का उन्वान है अहले जुनू, क्योंकि शायर जो हैं वो सबसे ज्यादा अहले जुनू कहलाने के मुस्तहिक हैं। सही। हम वही अहले जुनू अहले वफा साहिब दिल, हम वही अहले जुनू अहले वफा साहिब दिल, हम के हर दौर में औराक़ ज़माना के अमी, वाह। हम के हर दौर में औराक़ ज़माना के अमी, वो लहू उनके ही माथे से बहा है जिससे, वो लहू उनके ही माथे से बहा है जिससे, आज दीवार खिरत की है लहू रंग जबी, वाह। आज दीवार खिरत की है लहू रंग जबी, हम हमेशा से हैं तारीख के अनमोल रतन, हम हैं ताबानी विजदान
सरापा इल्हाम। हम कभी उभरे तो एहसास फरावां की तरह, और कभी हमको पुकारा गया अफकार दवाम। वाह, हम कभी उभरे तो एहसास फरावां की तरह, और कभी हमको पुकारा गया अफकार दवाम। बारिशे संगे अलम अपना मुकद्दर ठहरी, बारिशे संगे अलम अपना मुकद्दर ठहरी। राहते दर्द मिली लुत्फ़ो करम के बदले। वाह, जीस्त हर तौर से हर तरह गवारा थी हमें, क्या कहना है, जीस्त क्या हर कहना तौर से हर तरह गवारा थी हमें। वाह, वाह, ना हम ही बदले ना अंदाज सितम के बदले, क्या कहना, ना हम ही बदले ना अंदाज सितम के बदले। जब भी जुल्मत के जिगर चाक किए हैं हमने, एक नई सुबह का पैगाम दिया करते हैं। क्या कहना, जब भी महताब ज़रफ़शां के हो चेहरे पे निकाब, जब भी महताब ज़रफ़शां के हो चेहरे पे निकाब। जान हम रख के हथेली पे उलट देते हैं, वाह, जान हम रख के हथेली पे उलट देते हैं। हम है सीमाब सिफत हक़ व सदाकत की नवेद, क्या कहना, हम है सीमाब सिफत हक़ व सदाकत की नवेद। माबुदे जुल्म में नेकी के सनम ढलते हैं, जब्र से जुल्म से हम डर नहीं सकते हरगिज़, जब्र से जुल्म से हम डर नहीं सकते हरगिज़। साते जहद में शोलों की तरह जलते हैं, वाह, साते जहद में शोलों की तरह जलते हैं। अपना एहसास ये काविश ये तफक्कुर ये जहद, अपना एहसास ये काविश ये तफक्कुर ये जहद। हमसे ही वक्त की ये सारी मसीहाई है, वाह, अपने ही नक्शे कदम संगे निशाने मंजिल, अपने ही नक्शे कदम संगे निशाने मंजिल। अपने ही दम से बसीरत है ये बीनाई। क्या कहना, वाह वाह, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। अब दूसरी तरफ से आते हैं। जी जाहिर है कि आप लोग जो कनाडा में मुकीम हैं उनको एक और मसले का सामना होता होगा, और वो है भारतीय लॉबी। अच्छा, दीगर ज़बानों के रहने वाले भी हैं और उनका भी अपना जी, एक बिल्कुल। कल्चर, सकाफ़त और समाजी दायरा कार है। तो ये जो पाकिस्तानी अदीब और शायर हैं जो वहाँ जाकर अब मुकीम हो चुके हैं, वो लोग किसी मुश्तरका लाहे अमल के सहारे आगे बढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल। और क्या है लाहे अमल? मतलब हिंदुस्तानी शोरा भी और फनकार जैसे मुसव्विर हैं या अदीब हैं, वो सब मिलकर काम करते हैं वहाँ पर इस तरह के तनाज़ात या जैसे एक सरहदी हमारी जिसको कहना चाहिए कि एक बोझ सा महसूस होता है, लेकिन वो वहाँ जाके नहीं महसूस होता। सब मिलजुल के काम करते हैं, सब मिलजुल के वर्क करते मतलब हैं। वहाँ कोई तासुब नहीं नहीं, है? मैंने कुछ महसूस नहीं किया। हमारे मुशायरों में जो है वो इंडियंस भी शरीक होते थे और हिंदू भी नाते पढ़ते थे, और मुसव्विरी के जो प्रोग्राम्स होते थे अक्सर तो घरों में ही पेंटिंग्स की नुमाइश होती थी, तो हम जाते थे वहाँ पे। लेकिन कोई इस किस्म का कोई तासुब या ऐसी बात नहीं थी कि बस सब फन के परस्तार थे, सब मोहब्बतों के अमीन थे, सब आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात को शेयर करना चाहते थे। और जो ये हुस्न लताफत है हमारे अंदर, जो आर्ट की सूरत में या फ़नून लतीफ़ा की सूरत में परवान चढ़ता है, उसको सब जिला बख्शना चाहते थे। मैंने ये महसूस किया। अच्छा, एक तख्लीकार जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुकम्मल सुकूनत इख्तियार कर लेता है, तो इस हिजरत के असरात उसकी नफ्सियात और मिजाज पर किस तरह मुरतब होते हैं और उसकी तख्लीकात पर किस तरह से अंदाज देखिए, होते हैं, और आप पर ये असरात जी कैसे बिल्कुल, मैं पड़ते इस हैं? सिलसिले में कैसे आपको एक अंदाज गज़ल सुनाना पसंद करूंगी जो मेरे हिजरत के दुख की गम्माज है। होते हैं? अच्छा, हाँ, जाहिर है, देखिए पाकिस्तान तो हम छोड़ नहीं सकते, ये तो हमारी अपनी जगह है, और इस ज़मीन से जो हमें मोहब्बत है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए तो हम अब फिर यहाँ मुकीम हैं, आते ही रहते हैं और अक्सर व बेशतर यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की अदबी महफिलें, यहाँ की जो दिल नवाजियाँ हैं, इस ज़मीन की जो महक है, वो हम कैसे फरामोश कर सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला वाकई ये हिजरतों का दुख है, जो वहाँ के शोरा की शायरी में मैंने महसूस किया। और जब मैं वहाँ पे गई थी तो ये दुख जाहिर है कि एक शायरा होने की हैसियत से